Over to you, Ranu, now. जय जिनेन्द्र सभी को. Welcome to our new learning series of Genin. Before we begin, a quick introduction of Genin. Genin was originally founded in April 2017 in Gurugram, which is now on an international platform. We have got more than 600 plus professionals in this series with us. So the purpose of this Genin is that we learn the basic principles of Jainism, which help us in our personal and professional life, the application of it, and how we can benefit from this. During this series, we have done almost 100 plus sessions, and there are quite a sum to name. Like we have done series of Bara Bhavna, series of Sola Karan Bhavna, Das Lakshan series, and many more. And today, it is our 130th session of Genin. So today we begin our first series of Prashnottar Ratn Malika, which is like a question answer format. And for this series, the speaker for today is Shri Kamal Khan Jaswal Uncle Ji, which I am privileged to introduce him. So Kamal Uncle has served in Indian administrative services for over 36 years. He holds degrees of MSc in Geology, MPhil in Economics and Management of Public Enterprises, and LLB. He has also taught at the Banaras Hindu University and the University of Lucknow. Uncle, during his tenure, he has held several challenging positions in the field, in the state and central government. During that time, he was deputed to Republic of Mali by the United Nations Organization, where he was involved in drawing the plans for the industrial development of the country. Then he retired as Secretary to Government of India Department of Information Technology. After the retirement, he was appointed as Member Secretary of the National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector, where he played a key role during its formative period. Because of his keen interest in governance and the reforms, Uncle was part of Common Cause, which is a reputed public interest organization, where he has served as a director during 2007 and 2015. And since then, he is president of the governing council. After the retirement, Uncle is now devoting much of his time in the study of Prakrit and Jain scriptures. He's also been influenced by Muni Shamasagar Ji Maharaj and Acharya Ji Vidyasagar Ji Maharaj. Muni Shri Shamasagar Ji Maharaj, he wrote Atmanveshi on Acharya Shri Vidyasagar Ji Maharaj, and the translation of this book was given to Kamalkant Uncle, where he took almost 4 years of hard work, and it was translated in that time. The annotated translation of his lyrical narrative, this was published by Bharatiya Jnanapith under the title In Quest of the Self in 2006. Not only this, Uncle is also occasional poet, and he writes, and he has a command in Hindi, English, and Urdu. So that is from my side, and over to you, Uncle. It would be a pleasure to listen to you. Please welcome. Jai Jinendra. It's always a pleasure to come back to our sessions, study circle session. तो आज का विषय तो बता दिया है रानू जी ने, लेकिन उसकी शुरुआत करने से पहले मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों की भावना ये है कि अब चूंकि आचार्य विद्यासागर जिनका उन्होंने मेरे परिचय में उल्लेख किया, अब हमारे बीच नहीं है, केवल स्मृति शेष हैं, तो उन्हें हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। उनके विषय में कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाने की तरह से है। हमारे युग के अग्रणी आचार्य थे वो, और उन्होंने जो संघ स्थापित किया
उसने एक आदर्श हमारे सामने रखा है कि किस तरह से इस पंचम काल में भी बिल्कुल चतुर्थ काल की सी चर्या संभव है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुनि क्षमा सागर के निर्देश से मैंने उनकी जीवनी को पहले पढ़ा और मुनिश्री से सुना उसके विषय में, और ताकि और फिर उनके द्वारा दिए गए दायित्व का मैंने निर्वाह किया। अब आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि इस पुस्तक का अब तीसरा संस्करण निकलने जा रहा है। मैं आजकल उसी पर काम कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि शीघ्र ही मैं इस काम को पूरा कर सकूंगा। इसमें कुछ परिवर्धन किया जाएगा। इसमें आचार्य श्री की श्रद्धांजलि आदि और नई सामग्री सम्मिलित की जाएगी। आचार्य श्री के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। एक हमारी उत्कृष्ट आचार्य परंपरा रही है। आद्य आद्याचार्य कुंद कुंद से लेकर जो चली, जिसमें आचार्य उमा स्वामी, आचार्य समंत भद्र और फिर हमारे युग में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, फिर उसके बाद आचार्य वीर सागर, आचार्य शिव सागर, आचार्य ज्ञान सागर, उस परंपरा के बहुत कुशल निर्वाहक हमारे आचार्य श्री रहे। तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि आचार्य कुंद कुंद के शब्दों में ही एक हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनको स्मरण कर सकते हैं। आचार्य कुंद कुंद ने अपनी महागुरु भक्ति में आचार्यों की परिभाषा देते हुए लिखा था, पंच महव्वय तुंगा तत्कालीय सपर समय सुध धारा राणा गुणगण भरिया आयरिया मम पसीदंतु। यानी उसका अर्थ हुआ कि पांचों महाव्रत के पालन में जो शिखरस्थ हैं, पंच महाव्य तुंगा तत्कालीय सपर समय सुधारा, और अपने समय के, दूसरों के और अपने आगम का जिन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन किया है, जिसको वो धारण करते हैं, नाना गुणगण भरिया, और अनेकों गुणों से जो परिपूर्ण है, संपन्न है, ऐसे आचार्यगण मेरे ऊपर कृपा करें। तो ये इसमें जो जो आचार्य के गुणों का वर्णन है, जो जो उनके लिए विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं, वो सारे के सारे आचार्य श्री के ऊपर चरितार्थ होते हैं। अब हम विषय वस्तु पर आते हैं। तो जैसा कि रानू ने कहा कि ये एक छोटी सी कृति है, छोटी सी कृति है, मात्र 29 श्लोकों की, और इसके रचयिता बहुत ख्यातनामा एक सम्राट थे नवीं शताब्दी के, जिनको कि राजर्षि की उपाधि दी जाती है, क्योंकि वो राज्य काल में ही, अपने शासन काल में ही ऋषियों के समान उनका आचरण था, और इसलिए भी उन्हें राजर्षि कहते हैं कि जब उन्होंने राज्य अपना छोड़ दिया अंतिम समय में, तो तब उसके बाद उन्होंने दीक्षा ले ली, ऐसी मान्यता है। तो राजर्षि अमोघ वर्ष का एक संक्षिप्त सा परिचय हम शुरू में देना चाहेंगे। मैं नीरज जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो मैंने कुछ स्लाइड्स भेजी हैं उनका उनको क्रमवार दिखाएं। मैं जब कहूँ तब दूसरी स्लाइड दिखाएं। अभी पहली। जी जी अंकल, आपको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? जी हाँ, दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, तो ये राजर्षि अमोघ वर्ष कृत ग्रंथ है, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका इसका नाम है। रत्नमालिका इसलिए इसको कहा गया है कि इससे जैसे कि रत्न की माला से शोभा होती है, इसी तरह से इससे आपकी वाणी की, आपके कंठ की शोभा होती है, और ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया ये ग्रंथ है। ये प्रश्नोत्तर शैली एक बड़ी पुरानी विधा है,
कई सारे आपको इसमें रचनाएं, कई सारी रचनाएं मिलेंगी साहित्य में और आगम में, जो कि प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई हैं। आप लोगों ने शायद सुना होगा, महाभारत में भी एक प्रसंग आता है, महाभारत के वन पर्व में, कि जब पांडव भाई सब वनवास में थे, तो तब एक बार उनको बड़ी प्यास लगी युधिष्ठिर को, और उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि पानी की व्यवस्था करो। तो पानी लेने के लिए अर्जुन जाते हैं। अर्जुन, वे एक एक करके उनके भाई सब गए पानी लेने के लिए, और कोई लौट के नहीं आया। तब अंततः स्वयं युधिष्ठिर पहुंचे, उनकी पानी की तलाश में पहुंचे। तो वो एक तालाब पर आए, तो उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई वहां पर मूर्छित पड़े हुए थे, बल्कि मर ही गए थे। और तो उनकी समझ में नहीं आया। तब फिर एक यक्ष वहां पर प्रकट हुआ, और उसने उनसे कुछ प्रश्न किए, और एक के बाद एक वो प्रश्न करता गया, वो उत्तर देते गए। फिर अंततः उसने उनसे चार प्रश्न किए, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं उन्हें बताता हूँ, आप लोगों ने शायद सुना होगा। कह मोदते, कह मोदते, कह पंथा, एक मिनट, कह मोदते किमाश्चर्यम, कह पंथा काच वार्तिका। यानी कौन प्रसन्न होता है, आश्चर्य की बात क्या है, मार्ग कौन सा है, और बात क्या है, खबर क्या है। तो फिर इसका उसमें आगे वो कहता है कि ममैतांश्चतुर प्रश्नान कथयित्वा जलम पिब, कि मेरे इन चार प्रश्नों का उत्तर देकर तुम पानी पी सकते हो। तो यक्ष के प्रश्नों का युधिष्ठिर बहुत समीचीन उत्तर देते हैं, और उससे प्रसन्न होकर वो उनके भाइयों को पुनर्जीवित कर देता है, और फिर सब भाई अपना चले आते हैं। तो इसीलिए इस तरह के जो कठिन प्रश्न होते हैं उनको यक्ष प्रश्न कहा जाता है, कि जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो इसमें भी प्रश्न हैं जो कि बहुत सरल भाषा में, जिनका उत्तर बहुत संक्षेप में दिया गया है, चाहे दो शब्दों में, चाहे कभी कहीं कहीं तो एक शब्द में ही उत्तर दिया है, कहीं कहीं एक पद में उत्तर दिया है। तो लेकिन वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उनके जो उत्तर हैं वो हमें सोचने के लिए बाध्य करते हैं। और यदि हम उन प्रश्नों इस इन प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को स्मरण कर लें, तो उससे हमारी शोभा बढ़ेगी। और मैं अब थोड़ा अमोघवर्ष के विषय में बताना चाहूंगा, तो आगे चलें। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट वंश के एक बहुत प्रसिद्ध सम्राट थे। बचपन में उनका नाम शर्व रखा गया था, और जब उनका राज्याभिषेक हुआ लगभग 14 वर्ष की आयु में, उनके पिता की मृत्यु के बाद, तो तब उन्होंने अमोघवर्ष का नाम चुना। और अमोघवर्ष नृपतुंग, और भी उनके कई सारे नाम थे, अतिशय धवल, और परम भट्टारक, आदि आदि, श्रीवल्लभ। उनका जीवन काल 800 से 878 ईस्वी तक था। और अपने लगभग 64 वर्ष के, 63 वर्ष के, 62 वर्ष के राज्यकाल के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था, ऐसी मान्यता है। और फिर ये उस समय की सबसे दीर्घ अवधि थी। तब तक यानी इतना ज्यादा कोई नहीं जीता था, और फिर 62 साल तक राज्य करना, ये बहुत ही विलक्षण बात थी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि राज्य करते हुए भी वो बहुत हद तक सन्यासी की तरह से जीवन जीने लगे थे, और इसीलिए उनको
इतिहासकारों ने दक्षिण का अशोक कहा है। उनका जीवन बहुत ही, प्रारंभिक जीवन तो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि उस समय बड़े बड़े कई साम्राज्य थे और वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। उसका परिणाम ये भी हुआ था कि शासनकाल के प्रारंभ में ही उनको अपदस्थ कर दिया गया था। फिर बाद में उन्होंने अपने वंश के एक शाखा के राजा से, जो कि उनके रिश्ते में चचेरे भाई थे, उनकी सहायता से उन्होंने अपना राज्य वापस लिया। और फिर धीरे धीरे उन्होंने ये पाया कि राजाओं का जो आपसी युद्ध होता रहता था, उससे कितनी जनजीवन की क्षति होती थी। तो उन्होंने शांति स्थापना के लिए प्रयास किया, और उसमें उनकी एक बड़ी कुशल नीति ये थी रही कि वो उन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से शांति स्थापित की। अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी राजाओं से करके उन्हें अपना दामाद बना लिया, और फिर वो उन्होंने उनकी अधीनता भी स्वीकार कर ली। इसी तरह से अपने परिवार की और भी कन्याओं का उन्होंने प्रतिद्वंदी राजाओं से विवाह किया, और उन सब से वैवाहिक संबंध करके उन्हें परिवार का अंग बना लिया। और फिर ये इसीलिए उनके राज्यकाल में बड़ी समृद्धि रही, उनकी प्रजा बहुत प्रसन्न रही। और एक अरब यात्री आया था जिसका नाम सुलेमान अल ताजिर था। उसने बहुत ही विस्तृत विवरण लिखा है उनके शासन पद्धति का और उनके राज्य की समृद्धता का। उसने ये भी लिखा है कि दुनिया में जो 4 सबसे बड़े सम्राट हैं, उनमें उनकी गणना होती है। वो अन्य 3 कौन थे? एक तो बगदाद का खलीफा, चीन का सम्राट, और जो आजकल इस्तांबुल कहलाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल, तो उसका जो रोमन एम्परर था वो, तो उनके समकक्ष उनको माना था। तो उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई थी मान्यखेत, जिसकी तुलना इंद्र की अलकापुरी से की जाती थी। इतनी सुंदर और इतनी वैभवशाली राजधानी थी। ये कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में है। और आप देखें कुछ उनके समय के जो स्मारक हैं, जो मंदिर हैं, जो उन्होंने स्थापित किए, जैन मंदिर, उन्हें दिखाइए नीरज, अगली स्लाइड। हाँ, ये बताना भी आवश्यक है कि वो आचार्य जिनसेन द्वितीय के बहुत प्रिय शिष्य थे। वीरसेनाचार्य जो आचार्य जिनसेन के भी गुरु थे, जिन्होंने धवला और जय धवला जैसी टीकाएं लिखी हैं। धवला टीका ये षटखंडागम की टीका है, जिसमें कि 72,000 श्लोक हैं। और जय धवला जो कि कषाय पाहुट की टीका है, तो वो उन्होंने प्रारंभ की थी। फिर उसे पूर्ण किया उनके शिष्य जिनसेनाचार्य द्वितीय ने, जिन्होंने आदि पुराण भी लिखा, और पार्श्वाभ्युदय नाम की उनकी एक रचना है। तो जिनसेनाचार्य उनके समय में थे, काफी समय तक रहे उनके राज्यकाल के समय। और फिर बाद में जब उन्होंने समाधि ले ली, तो उनके अपूर्ण ग्रंथ को गुणभद्राचार्य ने पूर्ण किया, आदि पुराण को। और दूसरा उसी के कंटिन्यूएशन में आदि पुराण, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऋषभ देव भगवान के विषय में है। और बाकी तीनों 2300 तीर्थंकरों की चर्चा और बाकी और शलाका पुरुषों की चर्चा उत्तर पुराण में है। तो इन दोनों को मिलाकर, आदि पुराण और उत्तर पुराण को मिला के महापुराण कहा जाता है। दूसरा बहुत जो प्रसिद्ध ग्रंथ है गुणभद्राचार्य का, वो आत्मानुशासन है। अमोघवर्ष स्वयं बहुत विद्वान थे और कवि थे, बहुत उच्च श्रेणी के। उनकी कन्नड़ रचना जो है कविराज मार्ग, वो एक आज भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट माना जाता है। काव्य शास्त्र की सर्वोत्कृष्ट रचना है ये।
जो प्राचीन कन्नड़ में लिखी हुई है, और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका तो हम सब मिलकर साथ साथ अध्ययन करने जा रहे हैं। उनके राज्यकाल में राष्ट्रकूट वंश विद्वानों का पोषक माना जाता था, और बहुत सारे दिगंबर आचार्य भी उनसे लाभान्वित होते रहे। उनके संघों को उन्होंने बहुत दान दिया। महावीराचार्य अपने युग के महानतम गणितज्ञ थे, और उनका गणित सार संग्रह एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, शाक्टायन पाल्यकीर्ति। उन्होंने अमोघ वृत्ति और शब्दानुशासन लिखा। महावीराचार्य जी ने अपने ग्रंथ में अमोघ वर्ष की प्रशंसा में 6 श्लोक लिखे हैं, और उसमें उन्होंने लिखा है कि वो स्याद्वाद न्यायवादी और यथाख्यात चारित्र के धारक थे। तो इससे ये अनुमान होता है कि उन्होंने दिगंबरी दीक्षा, ज्ञानेश्वरी दीक्षा ली थी। और भी इसके उल्लेख मिलते हैं कई सारे ताम्रपत्रों में और शिलालेख में। ये उल्लेख आता है कि उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर दीक्षा ले ली थी। अगला, ये इससे आपको अनुमान होगा कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार कितना था। देखिए, यहाँ तक ये उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में कन्नौज तक उनका शासन था, और ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु का भी कुछ अंश, उड़ीसा, उड़ीसा तो नहीं, मध्य प्रदेश, ये सब उनके साम्राज्य में आता था। और लेकिन उसी बीच में वहाँ पर और भी साम्राज्य थे, जैसे कि इधर गुर्जर प्रतिहार इस क्षेत्र में थे, और यानी पश्चिम में, और दक्षिण में पाल। इन लोगों से निरंतर संघर्ष होता रहता था, जिसमें कि अपनी कूटनीति से और अपनी राजनीति से अमोघ वर्ष ने धीरे धीरे शांति की स्थापना की। अगली स्लाइड। ये एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जैन। उनका एक नाम वीर नारायण भी था, तो इसको जैन नारायण मंदिर कहते हैं। पट्टाकाडल एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो वहाँ पर राष्ट्रकूट युग के कई मॉन्यूमेंट्स हैं। अगला, ये एक बहुत पुराना फोटोग्राफ है, 1874 में लिया हुआ। ये बेलगाम में कोन्नूर नामक एक स्थान है, वहाँ पर जैन बसदी है। बसदी कन्नड़ में वसतिका को कहते हैं, यानी जहाँ पर जैन मुनि वगैरह ठहरते थे, मंदिर होता था, उसको बसदी कहते हैं। अगला, ये पट्टाकाडल की बस्ती है, ये मंदिर है, ये भी उसी पीरियड का है। तो अब हम ग्रंथ पर आते हैं। तो जैसे कि परंपरा है, सबसे पहले एक मंगलाचरण होता है, जिसमें जो रचयिता है ग्रंथ का, वो अपने इष्ट देव की आराधना करता है, और साथ ही साथ अपनी प्रतिज्ञा बताता है कि वो क्या करने वाला है, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो ये मंगलाचरण है। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्षे नागनरामर वंद्यम देवम देवाधिपम वीरम। तो इसे अगर हम अन्वय करें इसका, यानी जो वर्ड ऑर्डर हमारे बोलने में होता है, प्रोज में होता है, तो ये होगा नाग नरामर वंद्यम देवम देवाधिपम वीरम वर्धमानम प्रणिपत्य प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्षे। यानी नाग, नागेंद्र आदि, नर, चक्रवर्ती, और अन्य नर नारी, अमर यानी देवता, इन सब से इन सब के लिए जो वंदनीय है। तो यहाँ पर केवल नागों की बात क्यों की गई? नागों की बात इसलिए की गई कि ये
अधोलोक में निवास करते हैं, यानी देवताओं की एक श्रेणी है। और ये अधोलोक में निवास करते हैं। तो अधोलोक का इस तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये उनके लिए नाग शब्द का प्रयोग किया गया है। और नर, ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मध्यलोक का, इसको कि इसमें यानी तिर्यंश भी शामिल हो जाएंगे, और कुछ भवनवासी देव भी यहाँ पर पाए जाते हैं, उनके भी भवन होते हैं। तो वो सब का प्रतिनिधित्व न करते हैं। और अमर का मतलब जिनकी मृत्यु नहीं होती। तो मृत्यु तो सभी की होती है, तो जिनकी बहुत लंबी आयु होती है उनको भी अमर कह देते हैं उपचार से। तो इसका अर्थ देव होता है। तो इस यहाँ पर इसका आशय हो गया कि देवों के जो सभी निकाय हैं उनके द्वारा भी वंदनीय है। अब देवम, ये मतलब यहाँ पर स्वयं जो दिव्य स्वरूप है जिनका। और इसमें आप ये भी इसका अर्थ लेना चाहिए कि जिस जिस अर्थ में आचार्य समंत भद्र ने आप्तमीमांसा में बताया है कि जो जो सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, और वीतराग हैं, वही आप्त होते हैं। और उन्हीं को देव कहलाने का अधिकार है। तो इस आशय में है ये। और देवाधिपम, देवाधिपम में देवों के जो स्वामी हैं, तो उनको स्वयं देव कहा है। स्वयं देव एक दूसरे अर्थ में कहा है, आप्त के अर्थ में कहा है। और यहाँ पर देवों का मतलब जो चार निकायों के देव हैं, यानी भवनत्रिक। भवनत्रिक में आ गए आपके पहले भवनवासी, 10 प्रकार के भवनवासी। और फिर उसके बाद 8 प्रकार के व्यंतर। और फिर उसके बाद आ गए आपके ज्योतिष्क, जो 5 प्रकार के हुए, सूर्य चंद्र तारागण और ग्रह और नक्षत्र। और फिर आ गए आपके वैमानिक देव, जिनमें 16 स्वर्ग कल्पवासी, फिर उसके बाद 9 ग्रहवेयक, फिर उसके बाद 9 अनुदेश, और 5 अनुत्तर। तो इन सब के जो स्वामी हैं, वीर, वीर महावीर भगवान के वर्धमान के 5 नामों में से एक है। वो वीर तो थे ही। उसका संगम देव की आप लोगों ने कथा सुनी ही है कि कैसे उन्होंने बचपन में ही उस जो भयंकर सर्प का रूप धारण करके देव उनकी परीक्षा लेने के लिए आया था, कैसे उसको उन्होंने वश में किया। तो उसने फिर महावीर की उनको उपाधि दी। तो वो वीर उनकी जो यानी बलशाली थे, और शौर्य था उनका, उससे क्षमता है और उससे आशय है। और इसके अतिरिक्त वीर उसको भी कहते हैं कि जिन्होंने अंतराय कर्म का क्षय करके अनंत वीर प्राप्त कर लिया है। उसका उसका उसकी एक वो क्षमता उनकी जग गई है। जो ऊर्ध्वगामी है उनको भी वीर कहते हैं। तो ये सब इस वीर में निहित है। वर्धमान उनका जन्म नाम था। और वर्धमान का अगर हम लाक्षणिक अर्थ लें तो वर्धमान का मतलब हुआ कि जिसकी विशुद्धि, जिसके चारित्र, जिसके गुण निरंतर बढ़ते रहते हैं, वो वर्धमान है। तो इस दृष्टि से हम सभी तीर्थंकरों को और बल्कि सभी जिनों को वर्धमान मान सकते हैं। तो इनको इनको प्रणाम करके, प्रणिपत्ति का मतलब हुआ प्रणाम करके, मैं प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को कहूंगा। ये प्रतिज्ञा है जो इस मंगलाचरण में आज राजर्षि अमोघ वर्ष करते हैं। अगला। कह खलु नालं क्रियते दृष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थया कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाया।
इसका अन्वय करें तो ये होगा, कह दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया न खलु अलंक्रियते। मतलब कि दृष्ट और अदृष्ट अर्थ, अर्थ का मतलब, अर्थ का मतलब यहां पर है पदार्थ से, वस्तु से। तो दृष्ट का मतलब देखा गया, जो देखा गया है, जो देखा जाता है, जो दृश्य है। अदृष्ट का मतलब जो नहीं देखा जाता। तो ऐसे पदार्थों को, साधन का मतलब जिन्हें सिद्ध करने में, जिनकी साधना करने में। पटियान का मतलब हुआ निपुण, पटु। तो अब दृष्ट क्या है? दृष्ट का मतलब जो सब कुछ हम देख सकते हैं, जैसे कि जिन बिंब हैं हमारे, हमारे गुरु हैं, हमारे मित्र हैं, हमारा परिवार है, ये सब हमने देखा है। यानी इसमें आप इहलोक मान सकते हैं। और अदृश्य क्या है? जो हमने देखा नहीं, जैसे कि स्वर्ग नहीं देखा हमने, मोक्ष नहीं देखा हमने, चारित्र नहीं देखा हमने। तो ये सब या सम्यक दर्शन क्या है, ये हमने देखा नहीं, अनुमान लगाया है, देखा नहीं। तो ये सब सारी चीजें जिन्हें आप नहीं, आंखों से नहीं देख सकते, चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, वो सब अदृष्ट हो जाते हैं, अदृष्ट मान सकते हैं, कह सकते हैं उनको। तो इन सबको सिद्ध करने में, यानी अपना इहलोक और परलोक सुधारने में जो व्यक्ति निपुण है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है? कह दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कंठस्थित कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया न खलु अलंकृत, जो कंठ में स्थित, यानी जिसको कंठाग्र किया गया है, जिसको अच्छी तरह से आपने आत्मसात कर लिया है। विमल यानी निर्दोष, ऐसी प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, प्रश्नोत्तरों की ये श्रृंखला है, ये रत्न की मालिका की तरह से सुशोभित करने वाली है। तो खलु का मतलब निश्चित रूप से, अलंकृत का मतलब शोभायमान किया जाता है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कि दृष्ट और अदृष्ट पदार्थों के साधन में पटु है, वो अपने कंठ में स्थित इस निर्दोष प्रश्नोत्तर रत्न मालिका से सुशोभित नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि सभी कोई जो इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ का पारायण करके उसे कंठस्थ कर लेता है, वो शोभा पाएगा। और वो व्यक्ति कैसा होगा? वो दृष्ट और अदृष्ट पदार्थों की साधना में कुशल होगा, तभी वो ये सब कर पाएगा। तो ये श्लोक, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इसकी बहुत कुछ व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि समय पर्याप्त हो गया है, और ये उपयुक्त होगा कि आप लोगों के संबंध में या इससे संबंधित किसी और विषय पर अगर कोई कुछ कहना चाहें या कुछ पूछना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए। तो मैं यहीं पर विराम देता हूँ अपनी प्रस्तुति को, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अंकल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अंकल, आपसे सुनना हमेशा ही बहुत ज्ञानवर्धन होता है हमारे लिए। और जो आपने ग्रंथ का कॉन्टेक्स्ट सेटअप किया, जो अ, इनके रचयिता हैं उनके बारे में बताया, उसको भी जानना एक जरूरी होता है हम सबके लिए। हालांकि हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो शायद उस पार्ट को इतना डिटेल में या ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं, पर जो आपने बताया, और जब हम उनके बारे में, रचयिता के बारे में समझते हैं और हिस्ट्री समझते हैं किसी भी ग्रंथ की, तो हमारा उसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और फिर हम ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से उसके बारे में या उसकी
उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझ में आता है। तो मैं और ज़्यादा ना बोल करके बोलूँगा कि पहले अगर वाई के अंकल यहाँ पर हैं, क्योंकि हमारे मेंटोर हैं, वो कुछ कहना चाहें और कुछ हमारे लिए ज्ञान की बातें शेयर करें तो अच्छा होगा। वाई के अंकल आप हैं वहाँ पे? आप उपस्थित हैं अंकल? आपका, हाँ जी। हाँ, आपका वीडियो ऑन है क्या? हाँ है, मैं तो देख पा मेरी रहा आवाज हूँ। सुनाई दे रही है हाँ मेरे भाई? हाँ हाँ, मैं हेलो। आपकी नेट पे डालता। हाँ और अंकल। और आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ अच्छा। रही है अंकल, अब देख भी पा रहे हैं हम आपको। पहले तो मैं यही कहूंगा कि इतना दिन का तुमने जो गैप दिया नीरज और स्वाति, इसलिए कमल भाई ने स्लाइड्स तैयार करी। पहले इनके जितने भी होते थे उसमें स्लाइड्स नहीं होती थी, वो ये कहते मुझ पर स्लाइड्स नहीं बनती हैं। तो इसलिए ये वाला जो प्रेजेंटेशन था पहले प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा, नंबर वन। नंबर टू, कई सारी चीजें नई मैंने नोट की। उसमें से एक, जैसे मुझे यक्ष प्रश्न नहीं मालूम थे, जो मेरे को आज पता लगा यक्ष। आ, अब मुझे समझ में आ रहा है कमल भाई ने ये दूसरा श्लोक क्यों लिया। वो शायद उसमें मुख्य बात थी कि याद की हुई व्यथा ही काम आती है, डायरी में लिखी हुई नहीं। और इनको मालूम था मैं याद कुछ नहीं कर पाता हूँ और डायरी में लिखता हूँ, इसलिए शायद कमल भाई ने ये 2 नंबर लिया होगा। ये तो खुद ही बताएंगे। कुछ चीजें कंठस्थ मैं पढ़ रहा था। कंठस्थ विद्या, कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम, यानी अंटी का धन धन, और जो याद है विद्या वही काम आती। इसीलिए मुझे याद दिला रहे होंगे आपके, डायरी वायरी बंद करो, याद करना शुरू करो। चलिए। अ, कुछ चीजें मैं पढ़ रहा था इसकी भूमिका में, वो मुझे 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी थी। विवेक महापुरुष की वाणी से पढ़ने से ज्ञान ही आता है। दूसरा था, शास्त्र अथाह हैं, गुरु वचन ही शास्त्र हैं। अ, अब मैं एक दो प्रश्न मुझे क्लियर करेंगे कमल भाई। पहला, दृष्ट, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है व्याख्या में आत्मा, वो मुझे समझ में नहीं आया। और किसने दिया अदृष्ट, है एग्जाम्पल? उसी तुम्हारी में जो पीडीएफ मुझे भेजी गई है, तो आत्मा दृष्ट कैसे हो समझ में नहीं आता। और अदृष्ट सचरित्र दिया है उन्होंने, तो सचरित्र तो फिर भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है, पर आत्मा तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती। इसको जरा आप देखना, उसमें लिखा है, तो बाद में आप चाहें तो अपन अच्छा, बात कर सकते हैं ये इसको। मुनि प्रणन्न सागर की व्याख्या है ये? हाँ 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 हाँ, बराबर। हाँ, अच्छा, मुझे तो, अ, अच्छा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उसमें आत्मा दृष्ट में हाँ है। हाँ। अच्छा। दूसरा, यथा क्या चारित्र, ये तो उच्चम श्रेणी में अर्लीस्ट होगा, और इनको यथा क्या चारित्र कैसे हुआ? मेरे हिसाब से उसके करीब बहुत अच्छा चारित्र, उत्कृष्ट चारित्र शायद कहना चाहते होंगे। मैं सही हूं क्या? महावीराचार्य के शब्द हैं ये, जो उनके हम्म। समकालीन थे। उन्होंने लिखा है कि यथाख्यात चारित्र के धारक थे। पर वो अतिशयोक्ति भी हो सकती है, जैसे कि हाँ, प्रशस्ति में वो, लोगों की जी जी, ये हाँ जी एक हाँ जी, टेंडेंसी होती है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के हाँ। बात कह देते हम्म, हैं। तो उसका आशय, बराबर इसीलिए मैंने बराबर। कहा कि आशय ये रहा होगा उत्कृष्ट, कि वो, उत्कृष्ट, हाँ, उत्कृष्ट, है ना? जी हाँ। और तीसरा आखिरी पॉइंट है, जिनको भी वर्धमान चारित्र, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि तीर्थंकर को ही वर्धमान चारित्र होता है, जिनको शायद नहीं, जब तक वो श्रेणी न चढ़े तब तक। एम आई राइट? नहीं, वर्धमान तो होगा ही ना, जब तक कि सारे सारे घातिया कर्मों का नाश नहीं हो जाएगा तब तक तो जिन बनेंगे नहीं। तो जब तक नहीं हुआ है, यानी दीक्षा हम्म। से लेकर जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक तो निरंतर वर्धमान है। विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, इसलिए वर्धमान नहीं, कहते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सामान्य केवली के श्रेणी चढ़ने से पहले ऊपर भी जाएंगे नीचे भी आएंगे, पर तीर्थंकर कभी ऊपर नहीं, पहले भी नहीं
और बाद में भी, जो छठे साथ में गुणस्थान में ऑसिलेट करते हैं उसमें भी वर्धमान होगा, जबकि सामान्य में शायद ऐसा न हो। फिर भी और क्लैरिफाई कर दें आप, ये पॉइंट एक बहुत अच्छा लगा कि बेटियों की शादी करके प्रतिद्वंदियों से उन्होंने शांति स्थापित की। ये बहुत, क्योंकि फाइनल आपका गोल क्या है? शांति। चलिए, जय जिनेन्द्र। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। अपन आगे बढ़े उससे पहले जो भी अपने यहाँ पर ऑडियंस हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो फिर आपका अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो चैट ग्रुप में भी लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अंकल बस मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि अपन ये कह रहे हैं राजश्री अमोघ वृष, तो क्या इसका मतलब उन्होंने मुनि दीक्षा नहीं ली थी? अब ये इतनी पुरानी बात हो गई, 9वीं शताब्दी की बात है। तो उसका तब तक हमारे यहाँ इतिहास लिखने की ऐसी परंपरा नहीं रही है कि बिल्कुल डॉक्यूमेंट हो हर चीज। कुछ शिलालेख मिलते हैं, कुछ ताम्रपत्र मिलते हैं, कुछ और उस समय के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें उल्लेख मिलता है, तो उससे फिर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इतना तो निश्चित है कि 1877 में 877 में उन्होंने अपने पुत्र को राज्य छोड़ दिया था, और आचार्य जिनसेन के संग में आचार्य गुणभद्र थे तब तक, आचार्य गुणभद्र के संग में चले गए थे। दीक्षा हुई कि नहीं हुई इसके बारे में उल्लेख है कहीं पर यानी दूसरी राय है लोगों की। तो अनुमानतः है, यानी हम तो ये मानते हैं कि दीक्षा हुई, क्योंकि एक दो ग्रंथों में लिखा है, पर कुछ इतिहासकार उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जी, ये इसलिए पूछा उसी मैंने। तरह से ये इस रचना के बारे में भी है कि कुछ कहते हैं कि ये आदि शंकर की रचना है, अच्छा। कुछ कहते हैं कि किसी दूसरे आचार्य की रचना है। लेकिन कुछ ग्रंथों में ये इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि अमुकवश ने लिखा है। तो यानी चीजें कंटेस्टेड रहती हैं, उसके बारे में कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। जी अंकल, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पे लिखा है राजश्री अमोघ वृष, ये नहीं हाँ, लिखा मुनि श्री या आचार्य श्री, वो नहीं, राजश्री राजर्षि जो मुनि जो राजा से होते हैं, यानी राजा रहने के बाद जो संन्यास ले लेते हैं उनको भी राजर्षि कहा जाता है। अच्छा, यानी उनको राजर्षि कहते हैं। तो मुनि को भी अपन राजाश्री कह सकते हैं हाँ, अगर वो राजा अगर से। अगर अगर राजा रह चुके हैं वो। अच्छा, हाँ, इसलिए मेरे दिमाग में वो सवाल आया कि भाई इनको राजाश्री बोला है, तो क्योंकि मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, तो ये क्लियर हुआ। तो मतलब मुनि भी हो सकते हैं, मुनि भी थे शायद। हाँ, जैसे जैसे कि अगर दूसरे मत का लें तो राजा विश्वामित्र को हमेशा राजर्षि कहा जाता है, क्योंकि वो पहले राजा थे। हाँ, ही इज ऑलवेज रेफर टू एज राजर्षि। correct, हाँ, ठीक है। हाँ, और जो ऑडियंस है किसी कमल का। भाई, कमल भाई, जी, राज्य में रहते हुए ऋषि की तरह हाँ, रहें, ये भी मीनिंग लिया जा सकता है। मैंने कहा कि ये दोनों अर्थ हैं। दोनों अर्थों में आप राजर्षि कह सकते हैं। एक, जैसे कि जनक को आप राजर्षि कहते थे, विदेह कहा जाता था उनसे, उन्हें अपनी देह से भी आसक्ति नहीं थी, तो राज्य की किसी चीज से क्या आसक्ति होगी। भरत को भी राजर्षि कहा जाता है, क्योंकि भरत का आपने सुना होगा कि वो उन्होंने परीक्षा ली थी ना एक कि हाथ में दिए तेल से भरा हुआ दिया लेकर मेरे रनवास में घूम कर आओ, अपनी 96,000 रानियां हैं, एक से एक अनुपम सुंदरी। तो उनके बारे में पूछा फिर उन्होंने कि बताओ कैसी थी मेरी रानियां। तो उन्होंने कहा, जिनकी परीक्षा ली जा रही थी, कि किसने देखा उनको, मैं तो ये इसी कोशिश में था कि तेल की एक बूंद ना गिरे, क्योंकि आपने कहा था कि प्राणदंड दिया जाएगा अगर तेल की बूंद गिरी। तो मतलब ये कि फिर उन्होंने ये बताया कि इसी तरह से मैं भी इनसे, इस सारे वैभव से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि मेरा सारा ध्यान अपनी तत्व की साधना में लगा रहता है। तो उनको भी राजर्षि कहा जाता है। अ, नीरज भाई, जी अंकल। ये अपने अगले वक्ता शायद ब्रह्मचारी हाँ, वो मैं वही अनाउंस कर अवेलेबल हैं। हाँ, मैं वही अनाउंस हाँ, करने अगर वाला वो था, कुछ उनसे पूछना ऐड भी। करना चाहें, पूछना हाँ, चाहें।
हाँ, तो मैं अपने सभी ऑडियंस को बता दूं कि अपना 2 हफ्ते बाद जो दूसरा सेशन होने वाला है, जिसमें हम इसी बुक का श्लोक नंबर 3 और 4 लेंगे। और उनके उसके लिए जो हमारे स्पीकर हैं, ब्रह्मचारी डॉक्टर नीलेश भैया जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और 2 हफ्ते बाद आप उनको सुनने के लिए जरूर से वापस से ज्वाइन करें। पर उससे पहले मैं भैया जी से आग्रह करूंगा कि अगर वो कुछ ऐड करना चाहें तो उनका स्वागत है। वो अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। और मेरा मेरा भी अनुरोध है नीलेश भैया जी से कि वो जरा इस पर प्रकाश डालें। मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये मुनि मुनि प्रणब सागर की टीका है प्रश्नोत्तर रत्न मालिका की। इसमें वो कहते हैं, जो व्यक्ति इस रूप मालिका को पढ़ेगा तो उसे दृष्ट पदार्थ अर्थात दिखाई देने वाले और अदृष्ट अर्थात दिखाई न देने वाले ऐसे सभी पदार्थों को साधने में निपुण हो जाएगा। दिखाई देने वाले पदार्थ हैं गुरु, आत्मा, दान, संगति, धैर्य। और दिखाई नहीं देने वाले पदार्थ हैं मोक्ष, स्वर्ग, सच्चरित्र, आत्मिक सुख, परलोक का हित आदि। तो इसमें आत्मा दृष्ट किस विवक्षा से कहा गया है, इस पर भी आप प्रकाश डालें। डॉक्टर डॉक्टर नीलेश भैया जी, आपका माइक म्यूट पर है, आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब आपका कैमरा ऑफ हो गया, आप कैमरा चालू कर लें अपना। आज वो बड़ी दुविधा में थे कि पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। हाँ, नहीं हो धर्म गया। में तो माहिर आप है, अनम्यूट कर संसार के सकते हैं क्या? कामों में। हाँ, हो गया, अनम्यूट हो गया अभी, हाँ हो गया। हाँ भैया जी, आप जय अनम्यूट। जिनेन्द्र चाचा, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अ, मैं तो पहले डर ही रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। दूसरी बात, मैं आज पूरे तौर पे सुनने के लिए आया था, तो पहले मेरे पास दो प्रश्न हैं जो मैं पूछना चाहूंगा चाचा जी से। एक प्रश्न तो ये है कि जो आचार्य शंकर के संबंध में, ऐसा ही इस संबंध में धारणा बनाई गई है कि आचार्य शंकर का ग्रंथ है, तो कौन से आप भी तर्क देंगे कि नहीं, ये आचार्य शंकर का ग्रंथ नहीं है, अपितु जैन अमोघ वर्ष, जो राजर्षि अमोघ वर्ष थे, जैन परंपरा का ग्रंथ है। पहला तो ये। दूसरा ये कि आपके हिसाब से इस ग्रंथ को कौन से अनुयोग के अंतर्गत रखा जाएगा। विवाह के अंकल, आपके लिए है शायद सवाल। 2 सवाल है। कमल चाचा जी के लिए पूछ रहा था मैं। जी। अच्छा, कमल अंकल आपके लिए। कमल भाई वो जानते हैं कि मैं तो जवाब दे नहीं पाऊंगा। हाँ, नहीं, अगर आप योगेंद्र जी को चाचा जी कहते हैं तो मुझको भाई कहें, क्योंकि मैं इनसे एक पायदान नीचे हूँ, मेरे मामा हैं। जी पर जी। ये इसीलिए यूनिवर्सल मैंने चाचा मैंने इनका सब इसी संबोधन है, यूनिवर्सल। हाँ, नहीं, इसीलिए मैंने उत्तर देने की का उद्यम नहीं किया। मैंने सोचा कि ये उनके लिए है। जी, तो मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। इसमें मेरे विचार से मंगलाचरण के अतिरिक्त कहीं कुछ ऐसा नहीं है इस ग्रंथ में जिसको कि हम जैन मत से जोड़ सकें। तो इसमें जिन प्रश्नों का जो जो प्रश्न है और जो उनका उत्तर है, तो वो सभी मतों के लिए मान्य है। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हम कह सकें कि ये शंकर का नहीं हो सकता। जी तो जी वैसे एक ये प्रवृत्ति देखने में आती है कि जो भी कुछ अच्छा है उसको लोग हथियाने की कोशिश करते हैं। जी जी तो हम ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ समसामयिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से रत्नोत्तर प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को आचार्य अमोघवश कृत लिखा गया है। तो हमारे लिए वो पर्याप्त जैसा हमारे यहाँ पर 29 गाथाओं कारिकाओं में है पूरा ग्रंथ, है। जी। आचार्य शंकर ने उसे 67 गाथाओं में पूरा किया हुआ है। तो उस हम्म, संबंध में भी आप कुछ कहना चाहेंगे, जी, अतिरिक्त गाथाओं के संबंध में कुछ। मुझे तो उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, आप बताएं।
नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था, मुझे नहीं समझ में नहीं, अभी। मैंने शंकर का ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो जी मैं उसके विषय में नहीं कह पाऊंगा। जी। तो अब और प्रश्न ये अ, उठता है, शंकर का ग्रंथ अगर उसको सामने अगल बगल रख के देखा जाए, तो तब पता लगेगा कि वो 29 श्लोक यथावत उसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि शंकर का जो काल है वो तो अमोघ वर्ष से पहले का है। जी जी जी। तो अमुक वर्ष तो 9वीं शताब्दी के हैं, शंकर 8वीं शताब्दी के हैं। तो जी हो सकता है कि उससे वो प्रभावित हुए हों, ये भी संभव है। जी जी क्योंकि ये एक शैली थी जो चली आ रही थी, जैसे मैंने ही उल्लेख किया कि महाभारत में ये यक्ष प्रश्न आते हैं, तो उसमें कई सारे प्रश्न यक्ष पूछता है, फिर बाद में 4 अंतिम प्रश्न पूछता है, और उनका उत्तर लगभग उसी शैली में दिया गया है। तो ये एक परंपरा थी, और इसमें ये मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि समांतर धाराएं थी ये, श्रमण संस्कृति की और वैदिक संस्कृति की, और इनमें आदान प्रदान होता रहता था बराबर। तमाम और तमाम चीजें हैं जो कि जैन परंपरा में आई हैं, हिंदू परंपरा से, वैदिक परंपरा से, और तमाम ऐसा है खास करके सिद्धांतों के विषय में, जो कि वैदिक परंपरा ने और हिंदू सनातन परंपरा ने जैन धर्म से लिया है। तो ये तो आदान प्रदान होता रहा है। और मैंने पूछा था, हम संपूर्ण ग्रंथ का विश्लेषण करेंगे, तो उस ग्रंथ को कौन से अनुयोग के अंतर्गत रखना चाहेंगे आप? इसमें तो एक ही अनुयोग में नहीं आएगा, एक ही अनुयोग में नहीं आएगा, द्रव्यानुयोग के भी इसमें आपको मिल जाएंगे, और लोक व्यवहार के हैं, काफी कुछ लोक व्यवहार के हैं। तो उसको आप कहाँ रखेंगे? प्रथमानुयोग में रखेंगे, शिक्षा के हिसाब से उसमें आएगा, या चरणानुयोग में आएगा, कुछ आचरण से संबंधित हैं तो वो चरणानुयोग में आएंगे, द्रव्यानुयोग हो गया, चरणानुयोग हो गया। दो चीज तो मुख्यतया हो ही गई। कथा तो जी नहीं है कोई इसमें जो प्रतिमान युग में आए। तो इस जी तरह मैं ये मैं समझता हूँ कि इन 2 अनुयोगों में रख सकेंगे। जी जी जी। ब्रह्म सागर जी महाराज ने भी इसमें बोला है कि ये अजैनों के लिए भी है, व्यवहारिक है, और युवाओं के लिए है। तो जरूरी नहीं है वो कथा फॉर्म में हो। तो हम्म, मुख्यतः जैसा कमल भाई ने बोला, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग, पर कहीं कहीं वो द्रव्यानुयोग में भी गए होंगे, जी। जो अपन बाद में समझेंगे। जी। भैया जी, आप हाँ कुछ भाई, ऐड और करना चाहेंगे आज के सेशन के लिए? कुछ संक्षिप्त में, अपना समय हो चुका है लगभग एक। आपके आपके आज का मैं अगली बार के सेशन में उसको संक्षिप्त कुछ होगा तो मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि आज मैं घबराया हुआ हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ कि आप आए यहाँ पे, और फॉर्मेट भी आपको समझ में आएगा, और ये हम सबके लिए सौभाग्य होगा कि अगला सेशन आप ले रहे हैं, तो हम सब आपको अच्छे से सुनना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऑडियंस यहाँ और पर तब है, अगर कोई तब तक डर भी निकल जाएगा इनका। मेरे परमिशन हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सरल सा। हाँ हाँ, नरेश जी पूछिए, हाँ बिल्कुल। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र अंकल को बधाई, ये सीरीज फिर से स्टार्ट हुई। काफी टेक्निकल है, तो थोड़ा ध्यान लगाना पड़ा और डिस्कशन भी काफी अच्छा हुआ। लेकिन अच्छी बात है कि हम लोग जैन दर्शन के सिद्धांत और नई नई बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो याद रहेगा वही साथ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो जो हम लोग गुड़गांव में मेनली ज्यादा यहाँ पर है, और आई कैन सी द प्रोफेशनल्स भी बहुत हैं, और क्राउड इज वेरी मिक्स। मतलब सब तरह के, मतलब नमोकार भी नहीं आता है, किसी को 12 बहाना, किसी को 6 डाला, किसी को कहा। तो युवा वर्ग के लिए जो कॉर्पोरेट के हैं, जो जैनिज्म में भाई अब पिकनिक में ही मिले थे, हम कैसे कलेक्टिव प्रयास कर सकते हैं तो हमारा रुचि जो मंदिर नहीं जाता मंदिर जाने की तरफ बढ़े, मंदिर जाता उसको स्वाध्याय स्वाध्याय समझ के, और यहाँ तक, क्योंकि आप आईएएस रहे हैं, आप बहुत एक अच्छा रिच एक्सपीरियंस है। तो अगर 2 मिनट प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। अब ये मैं इस पे बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि
ये सब कुछ अंदर से आता है। इसका कोई विधान नहीं है, कोई समय नहीं है, किसको कब, कौन कब नींद से उठ जाए। तो कुछ लोग होते हैं जो कि शुरू से ही जागरूक होते हैं, जिन्हें अपने अंदर झांकने की जिनकी प्रवृत्ति होती है, और जो समझते हैं कि हमें आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। कुछ लोगों को देर से ये बुद्धि आती है, जैसे मुझे देर से आई। तो ये तो इसके लिए उम्र का कोई वो नहीं है, रेलेवेंस नहीं है। और अंदर की बात है। थोड़ा बहुत संस्कारों से भी आता है, जो आपने देखा है उसे करना सहज होता है। पर इसका विपरीत भी हो जाता है, कुछ लोगों ने देखा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आगे की पीढ़ी के लिए, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए, वो कंसिस्टेंसी की बात है कि कहने में और करने में अगर उनको अंतर दिखता है। कि अगर मान लीजिए कि परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं, वो धर्माचरण की बात करते हैं और उनके आचरण में धर्म नहीं है अगर झलकता है, तो उससे बहुत नुकसान होता है, अप्रभावना होती है। विशेषकर युवा वर्ग के लिए वो बहुत, वो फिर कहते हैं कि क्या फायदा मंदिर जाने से, व्रत करने से, अगर आपने अपने कषायों को मंद नहीं किया। इस भाषा में तो नहीं बोलते हैं, लेकिन आशय ये होता है कि तो हम लोगों को, यानी जो बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम निरंतर गोल्ड फिश की तरह से हैं, बोल में जैसे गोल्ड फिश होती है, उसी तरह से लोग हमें देखते रहते हैं। तो हमें अपने आचरण के ऊपर बहुत काम करना है कि अगर वहाँ पर हमसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए, जिससे कि अगर हम धर्म में श्रद्धा रखते हैं तो धर्म की अप्रभावना न हो। तो ये तो हमें अपने लिए हुआ। और नए लोगों, जो नई जनरेशन है, उसको हमें उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए कि अगर हमारा आचरण सही होगा, अगर हमारा आचरण ऐसा होगा, अगर हम निराकुल हैं, अगर हम शांत हैं, अगर हमारी कक्षाएं मंद हैं, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे परिवार एक रास्ते पर चल पड़ते हैं, एक व्यक्ति अगर इस तरह का हो। और बहुत से परिवार ऐसे होते हैं कि आप सब करते रहिए, जो बाह्य क्रियाएं हैं, जो वो सब करते रहिए, लेकिन अगर आंतरिक विशुद्धि नहीं आई है तो उसका कोई प्रभावना नहीं होगी उससे। ठीक है अंकल, थैंक यू फॉर नरेश हम- नरेश भाई, एक पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके इस प्रश्न के जवाब के लिए शायद ये शास्त्र लिया गया है, जिसमें बहुत व्यवहारिक और युवाओं के लिए स्पेशली है। और मुनिराज प्रणम्य सागर जी जैसे की व्याख्या, जो अपन को बहुत सरल भाषा में समझ में आती है, क्योंकि वो खुद भी एकेडमिकली एजुकेटेड है। ठीक। थैंक यू, थैंक यू। मुकुल जी ने हैंड रेस किया हुआ है। मुकुल जी, आप अनम्यूट होकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। जय जय सभी को स्वागत, जय जय। जय जी। मेरे को सिर्फ दो ही चीजें जाननी थी। एक तो जो हम ये राजश्री जी अमोघ कृत प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ये चूज किया है हमने, ये एक सब्जेक्ट, तो इससे एट लास्ट, इससे हम क्या लास्ट तक क्या कंक्लूजन क्या मिलेगा हम सब लोगों को, मतलब एग्जैक्टली क्या हम एट लास्ट इसमें क्या पाएंगे जब ये कंप्लीट होगा, और किस तरीके से हमारे को इट विल बी रियली बेनिफिट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। सेकेंड चीज ये कि इसके अंदर जो भी आप बता रहे हैं इसमें स्लाइड्स के अंदर, यदि इसमें साथ साथ हिंदी में भी थोड़ा सा, जैसे संस्कृत था, संस्कृत के साथ हिंदी में भी इसके अर्थ वहीं के वहीं थोड़ा सा यदि लिख दें, तो और थोड़ा जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं लिखे भी जाएं, तो और थोड़ा सा समझने में आसानी हुई। तो वो ये दो चीजें मेरे को बस बोलनी थी।
ये इसकी टीका हम लोग पहले सर्कुलेट कर चुके हैं, जिसमें कि विस्तार से अर्थ बताया गया है। और मैंने इसीलिए इसमें स्लाइड में नहीं रखा था, क्योंकि मैंने स्वयं काफी विस्तार से बताया है। और आपको इसका अर्थ देखना है, शाब्दिक अर्थ देखना है, तो आप कृपया उस पीडीएफ को देख लें जो कि सर्कुलेट किया गया था। वो बहुत विस्तार से उसमें आचार्य मुनिश्री प्रणब सागर ने उसकी व्याख्या की है। तो उसे उसे आप देख लें। और जहाँ तक इसकी उपयोगिता की बात है, जब आप जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे ये पहले दो श्लोक तो मंगलाचरण के और उस ग्रंथ के की प्रशस्ति के संबंध में थे। अब आप प्रश्नों पर आएंगे तो कुल मिलाकर 63 संभवतः इसमें प्रश्न है। और हर एक प्रश्न ऐसा है जो कि सीधा सीधा आपकी जीवन शैली से संबद्ध है। तो उसमें आप बहुत संक्षेप में वो उत्तर पाएंगे, पर जो हमारे आने वाले स्पीकर्स हैं वो उसकी व्याख्या करेंगे, और आप फिर देख सकेंगे कि उसकी उपयोगिता क्या है और उससे हम हमारे टेक अवेज क्या होने वाले हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मुकुल जी। जो यहाँ पर ऑडियंस हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप, जेनिन व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी एडेड नहीं हैं तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ शेयर कर सकते हैं चैट ग्रुप में, तो हम आपको व्हाट्सएप में ऐड कर देंगे। कोई भी और ऑडियंस का कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट होकर के पूछ सकते हैं। बस मैं एक चैट में एक कमेंट आया है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। आकाश जी जैन ने एक मैसेज लिखा है कि उनका ऑब्जर्वेशन है, explaining Jainism in practical terms to current generation is a big challenge and problem. Parents often find it very tough to interpret Jain values and heritage to English and Western educated people. तो उनका ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो कमल अंकल, वाइक अंकल, कुछ उस पर कमेंट करना चाहें आप? आप बताएंगे कुछ, योगेंद्र जी? इसका अनुभव तो कमल को ज्यादा होगा, क्योंकि मैं अगली जनरेशन से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता। पर कमल का मुझे मालूम है वो बोलते कम है, दिखाते ज्यादा हैं। और शायद यही बहुत सही अप्रोच है कि अपने चारित्र से अगर तुम प्रभावित हो रहे हो और अगर तुम्हारे कर्मों में ज्यादा अवरोध नहीं है तो तुम प्रभावित होकर इस डायरेक्शन में अपने आप आओगे। कमल भाई। जहाँ तक पुस्तकों का प्रश्न है, यानी नई जनरेशन की के लिए जो भाषा है, जो उनकी संवाद शैली है, जिससे जिस तरह से वो बात करते हैं, उसमें भी काफी अच्छे ग्रंथ हैं। और उसकी सूची भी मैं उपलब्ध करा सकता हूँ आपको, जो मुझे लगा कि उपयुक्त होंगे सबके पढ़ने के। बात यह है कि किस हद तक प्रयास करने के लिए उद्यत हैं। कुछ तो हमारा दायित्व बनता है उन्हें बताने का, और कुछ उनका भी दायित्व बनता है, क्योंकि सामग्री तो बहुत उपलब्ध है। और अभी मैं एक सज्जन के संपर्क में आया था। अमेरिका में रहते हैं वो, डॉक्टर हैं। और उनका काम पूरी तरह से वो इस काम में जुटे हुए हैं कि किस तरह से जो डायस्पोरा है, यानी अमेरिका में जो आप्रवासी हमारे जैन भाई हैं, 2 लाख के करीब हैं वहाँ, अमेरिका और कनाडा में मिला के। तो उनको उनकी जो जैन संस्कृति और जैन परंपरा है उससे कैसे जोड़े रखें। उसमें बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने छोटी छोटी पुस्तिकाएं इसके लिए लिखी हैं। और मैं अगली बार उसको आपको दिखाऊंगा। अब तो समय हो चला है। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अंग्रेजी में बहुत अच्छे तरह से, बहुत संक्षेप में मूल बातों को और बड़ी गहराई के साथ उसमें प्रस्तुत किया गया है। इस तरह की हिंदी में तो बहुत सारी हैं, बाल बोध और क्या क्या, तो तमाम है।
आप बच्चों को एक्सपोज कर सकते हैं उससे। फिर पाठशालाएं चलाई जाती हैं जगह जगह, उसमें काफी लोगों को अनुभव है। नीरज और रानू ये लोग भी लंदन में, लंदन में नहीं, एसेक्स में चलाते हैं। तो ऐसी पाठशालाएं यहाँ पर भी चलती हैं। तो मुझे यानी रुचि की बात है, अगर रुचि है तो सामग्री तो उपलब्ध है। इसमें ये पॉइंट ऐड करना एक चीज चाहूंगा। मैं नीरज हाँ पाइक नीरज अंकल आप भाई, एक चीज ऐड करना हाँ चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल कि बहुत सरल, जो क्षमा सागर जी महाराज की एक पुस्तक है कर्म कैसे करें, जो जैन और जैन दोनों में बहुत पॉपुलर है, उसका युवाओं के लिए, विदेशियों के लिए खास तौर से एक इंग्लिश ट्रांसलेशन अमेरिका वालों ने तैयार किया है, और वो यहाँ अवेलेबल है इंडिया में भी। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं उसका नंबर वगैरह दे सकता हूँ। जी अंकल। नीरज अंकल भाई। ये टॉपिक जो है अपने आप में काफी वास्ट है, लेकिन मेरा जो बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसमें मेरा ऑब्जर्वेशन अंकल ये है कि शायद ये शुरुआत जो होती है कि जैन धर्म की तरफ रुचि हो, ये अगर बच्चा छोटा है और माँ बाप जागरूक हैं तो वहां से शुरुआत होती है। अगर वहां शुरुआत हो गई बचपन में 5 6 7 8 साल की उम्र में, क्योंकि उस उम्र के बच्चे हर चीज करने को तैयार रहते हैं और वो बहुत ही इंटरेस्ट से काम करते हैं। जैसे अंकल आपने बताया कि जो रानू है वो यूके में, और मेरी वाइफ वो ऑनलाइन पाठशाला चलाती है 6 से 9 साल के बच्चों के बीच उम्र की, और मैं लेता हूँ 10 साल से ऊपर के बच्चों की पाठशाला। और वो बच्चे वहां आते हैं, लेकिन पेरेंट्स की हेल्प से ही आ पाते हैं। सारे बच्चे नहीं आते अपनी मर्जी से, बट पेरेंट्स भेजते हैं, उनका टाइम निकालते हैं। क्योंकि आज की जो लाइफ हो, इतनी बिजी लाइफ है बच्चों की, इतनी सारी एक्टिविटीज हैं। अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूँ तो अंत नहीं होगा। चाहे स्विमिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्टडी अपना क्या कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे स्कूल का होमवर्क हो, 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। और वो सब चीजें लेने के बाद वो छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल में है तो उसको समय मिल जाता है, लेकिन माँ बाप जो जागरूक हैं और जो समय देना चाहते हैं और उनके साथ काम करते हैं, वो बच्चे बिल्कुल आते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। फिर जब बच्चे वो टीनेजर होते हैं तो वो कंटिन्यू करते हैं अप टू द एज ऑफ 14 और एट द मैक्स 15। पर जब वो 16 साल के हो जाते हैं तो उनके ऊपर पढ़ाई का और सांसारिक जीवन का इतना प्रेशर होता है कि उनको बोर्ड के एग्जाम देने हैं, उनको अपना कैरियर बनाना है, उनको यूनिवर्सिटी जाना है, उनके पास बिल्कुल समय नहीं होता है। क्योंकि हमारे भी दो बच्चे हैं, एक टीनेजर और एक अभी यूनिवर्सिटी में, तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रांजिशन है। फिर जब बच्चा टीनेजर हो जाता है तो उसका थिंकिंग प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है। तो वहां हमने नोट किया है कि हो सकता है उस वक्त वो जैन धर्म तो ना पढ़े, लेकिन बचपन के संस्कार उनके दिमाग में रहते हैं। जब भी आप जैन धर्म की उनसे बात करते हैं तो वो समझते हैं, बात करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं और क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप मंदिर में ये है, या आपके समाज में ये है, या उसने वैसा किया और आप ये है। जैसा कमल अंकल आपने पॉइंट रखा था कितना अच्छा, जो गोल्ड फिश वाली बात कही, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो चुका है, वो अपने हिसाब से जीवन जिएगा तो वो रहेगा। लेकिन उसके अगर संस्कार बचपन में माँ बाप ने डाले हैं तो वो कहीं ना कहीं आगे जा करके वो काम आएंगे। हम खुद उसके एग्जाम्पल है। जब हम छोटे थे हमने जैन धर्म सीखा, बीच की जिंदगी में जैन धर्म कहीं नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, कोई मायने नहीं था। फिर परिवर्तन आया कि भाई कोविड आया, समय मिला, लोग जुड़े, तो वो संस्कार हमारे फिर काम आए और हमने पिछले 4 5 सालों में जैन धर्म को वापस से अपने जीवन में लाया। तो वहां पर आया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रैंडम एक जैन 10 15 20 जैन बच्चे मिल गए हमें किसी सामूहिक सामाजिक कार्य उसमें मीटिंग में, और हम बोले कि अब तुम जैन धर्म सीखो, जैन धर्म को फॉलो करो, जैन धर्म का ये करो। तो वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी गलत है, क्योंकि उन्होंने बचपन में देखा नहीं, उनके वो संस्कार नहीं है। फिर हम उनको फोर्स करना शुरू कर दे तो वो और दूर चले जाएंगे। फिर मेरा एक और ऑब्जर्वेशन है कि जब बड़े हो जाते हैं 40 50 साल की उम्र में और जैन धर्म समझना शुरू करते हैं, तब भी थोड़ी गलतियां हम जैसे लोगों से मैंने देखा है कि धर्म के सिद्धांतों को तो प्रॉपर नहीं समझ पाते और उसको फिर वो कहीं और जोड़ देते हैं। उसका बहुत छोटा उदाहरण मैं देखता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक जैन धर्म सामाजिक कार्य में या जैन मंदिर में कोई गैदरिंग के लिए पैसा देता है कि भोजन मेरी तरफ से करा दिया जाए, तो कई लोग जो अपने आप को जैन धर्म कहते हैं कि हम जानते हैं, वो लिख देते हैं कि आहार दान का पैसा आया, जबकि आहार दान तो सिर्फ मुनियों को ही होता है। हम जो एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं वो तो एक सांसारिक लेना देना है दुनिया का, कि भाई हमने एक दूसरे की मदद कर दिया, उसको जीव दया में डाल दो, किसी गरीब को खिला दिया या किसी जानवर को खाना खिला दिया या किसी जरूरतमंद को आपने खाना खिला दिया, तो वो आहार दान नहीं है, वो तो एक सामाजिक लेना देना हो गया, एक जीव दया हो गई। तो लोग बाकी इस तरह के मैसेज भी लिख देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो बाकी जो लोग समझते नहीं है वो थोड़ा मिसलीड हो जाते हैं।
तो ये इतना सिंपल चीज नहीं है कि हम हर किसी को जैन धर्म से ऐसे जोड़ दे एकदम रातों रात, या थोड़ी कोशिश करते करते, तो बहुत मुश्किल है। तो मेरी तो जो समझ आती है कि शुरुआत तो पेरेंट्स से होगी बच्चे के जीवन में सही संस्कार डालने की, और उसको वो सही जगह भेजेंगे, स्कूल में भी पढ़ाओ, पाठशाला में भी भेजो, तो बच्चा फिर अपने आप समझेगा, और एक उम्र के बाद वो सीख के रुक जाएगा 15-16 साल की उम्र में, और फिर वो जब 45-40-50 साल का होगा तो फिर वापस जैन धर्म में जुड़ जाएगा। ये मेरा मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है, जो कि मैं अपने साथ वाले लोगों का जीवन देखता हूं, तो इसी तरह का सबका जीवन रहा है जनरली। पर एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। कई लोग बचपन से लेकर लगातार जैन धर्म में इतना इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो सब तरह की चीजें हैं। एक दिलचस्प बात उन्होंने बताई, जिन सज्जन की मैं बात कर रहा था, डॉक्टर मनोज जैन नाम है उनका। तो वो बता रहे थे कि वहाँ पर जैसे कि जैना फाउंडेशन है, जैना एक संस्था है जिसमें 70 के करीब उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं सारे अमेरिका में और कनाडा में, यूएसए और कनाडा में। तो उसकी एक यूथ विंग है उसका, YJA शायद कहते हैं उसको। तो वो बहुत सक्रिय है, और पूरी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और सब उसमें ऐसे ही 19, 20, 22 यानी इस उम्र के लड़के लड़कियां, वो लोग अपने फंक्शंस करते हैं, और उसके साथ साथ उसमें एक एंटरटेनमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वो सब एंजॉय भी करते हैं इस कंपनी को, और साथ साथ जो जैन धर्म से एक्सपोजर है उसका भी लाभ उठाते हैं, वो भी होता है उसमें। तो लेकिन उसको यहाँ पर कराने का प्रयास किया गया, पर यहाँ नहीं चल पाया। तो ये देखने की बात है कि यहाँ क्यों नहीं चल पाया। यहाँ पर भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अगर बने तो अच्छा होगा, जिसमें कि जो उनकी रुचि की चीज़ें हैं वो भी हों, और साथ साथ एक ये भी गतिविधि हो कि आपको जैन होने का क्या अर्थ है, जैन होने का क्या महत्व है, क्या उसके मूलभूत सिद्धांत हैं, तो उनसे भी परिचय हो, और उसे फिर जीवन में उतारने का भी प्रयास हो। सही बात है। अपना समय 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है। नीरज, हाँ जी अंकल। नीरज, हाँ जी अंकल। जैसे आप और रानू कर रहे हैं यहाँ पर यूके में, इसी तरह मैंने आपको बताया सिंगापुर में भी बहुत इफेक्टिवली, ये ग्वालियर के ही एक पेयर है, वो कर रहे हैं। और हाँ आखिरी पॉइंट मेरा, कि जी जो अंकल। आप आहार के लिए पैसे की बात कह रहे थे, उसे आहार दान न कह के सहयोग राशि कहा जाता है। कहाँ जाए, तो हाँ। उसमें किसी को कोई, तो साधर्मी भाइयों के लिए जो हम करते हैं, दैट इज सहयोग। वो तो बिल्कुल सही सहयोग शब्द है, राशि सहयोग। नाम, हाँ, पर वहां पर थोड़ा सा लोगों का वो तो अंडरस्टैंडिंग भांति बड़ी भांति के लोग हैं। नीरज भाई, चैरिटी के लिए होता है, वो करुणादान होता है, जो कि आप हाँ, बस मैं एक वही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि अभी हमारी पाठशाला जो यूएस में प्रमाणिक एनआरआई पाठशाला है, उनसे जुड़ी है। उन्होंने हमसे अप्रोच किया, हम जुड़े। तो कल आचार्य श्री विद्यासागर जी की मिनियांजलि के लिए हाइकू के ऊपर बच्चों का प्रोग्राम था। तो 115 बच्चों ने हाइकू, सब बच्चों को एक एक हाइकू दिया गया, और 115 बच्चों ने जूम पर ऑनलाइन 3 घंटे प्रोग्राम प्रस्तुत किया, जिसमें यूके के लगभग 40 बच्चे थे, और कुछ यूएई के थे, कुछ आयरलैंड के थे, यूएस के थे, और एक और कंट्री के थे। तो इतने सब जगह से जुड़े हुए थे, और उनकी ऑस्ट्रेलिया की विंग का टाइम डिफरेंस था, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करके भेजा था। तो इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, हम भी उनसे जुड़ गए हैं। हमारी पाठशाला का भी अब पार्ट ऑफ एनआरआई प्रमाणिक पाठशाला हो गया है। पर वही बात आती है कि उसमें पेरेंट्स का बहुत सहयोग था। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ज्वाइन किया, टीचर्स ने ऑब्वियसली वो मोटिवेट किया सभी पेरेंट्स को कि भाई भेजो, इन्वॉल्व करो, समय दिया, हाइकू की जहाँ जरूरत पड़ी उसका अर्थ भी समझाया, और सब कुछ हुआ, चाहे इंग्लिश में समझाओ चाहे हिंदी में समझाओ, सब ने किया। तो अल्टीमेटली टीचर्स और पेरेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर के ही कुछ कर पाते हैं। ये मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाकी तो सब को आई थिंक सब समझते हैं अच्छे से। स्वाति जी, आपका भैया, वीडियो है, आप कुछ हाँ, बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं इसी में एक्चुअली एक तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारी सीरीज चालू हो गई है। तो थैंक यू सो मच कमल अंकल, वाईके अंकल और नीरज भैया, आपने इसको इनिशिएट किया। मेरा आज थोड़ा सा ऑफ एंड ऑन रहा ये सेशन में, मुझे रिकॉर्डिंग प्रॉपरली सुननी पड़ेगी क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट थे।
बट मैं इसके लिए यही कहूंगी कि एक तो भैया ये जो हो रहे हैं प्रोग्राम्स, इनके इनका जो लिंक वगैरह होता है वो अपन तीनों जेनिन ग्रुप्स में डाल दें तो लोगों को पता चलेगा। ये कौन सा वैसे वाला, यूएस एनआरआई में, का या अपना वाला? कौन सा प्रोग्राम बोल रहे हैं स्वाति जी? नहीं एनआरआई वाला भी, मतलब जो होता है वो भी हम्म। हम डाल दें तो पता चलेगा। और बाकी जो यूएस में जिन्होंने करवाया है, शेफाली जैन, वो भी वो अपने मेरी ग्रुप में सिस्टर है? ही है, वो मेरी अच्छा। सिस्टर ही है, अपने ग्रुप में है। हाँ। तो मतलब वो जेनिन में तो डाल देती है, 2 और 3 में नहीं डाल पाता है। और हम्म। और एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की अबाउट यूथ लर्निंग जैनिज्म, अभी ना जैसे काफी कोर्सेज चल रहे हैं कि 5 ईयर कोर्स ऑन जैनिज्म या 11 ईयर कोर्स और ये सब। तो अभी जैसे एक कोर्स के लिए मैंने कुछ एल्डरली लोगों को कहा कि आप लोग ज्वाइन करिए, आप लोग फ्री हैं। तो आई रियलाइज कि अलग अलग मीडियम्स भी होने चाहिए, मतलब एंड सिमिलरली बच्चों के लिए भी अलग अलग। किसी को कोई कोर्स करने से तो घबराता है कि हमें याद करना पड़ेगा, बट दे दोज पीपल अटेंड जेनिन दीज दीज सेशंस, क्योंकि उसमें उन्हें कुछ ऐसे एग्जाम नहीं देना है, बट दे लर्न इन द प्रोसेस। तो ये बहुत सारी डिफरेंट मॉडल्स हैं, मोड्स हैं, बट मतलब यही है कि हम हर तरीके से प्रोपोगेट करते रहें जैनिज्म, जिसको जो पसंद आएगा एटलीस्ट मतलब वो जैनिज्म की परंपरा चलती रहेगी और लोगों की लर्निंग चलती रहेगी, वो है। कैफेटेरिया अप्रोच, जिसको जो भाए। सही है। इसी बिल्कुल। में ये एक एडिशन है अंकल, हम बात कर रहे हैं संस्कारों की, कि पाठशाला डेफिनेटली हेल्प करती है, पेरेंट्स का रोल है। इक्वली मैंने नोटिस किया कि जहाँ जहाँ पर मंदिर हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा मंदिर जाने को रेडी रहते हैं, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे एक सोशल गैदरिंग भी होती है। बट इसी बहाने वो सीखने लगते हैं कि हाँ भाई, हर हफ्ते हमें पेरेंट्स संग मंदिर जाना है। जाते हैं तो उनको थोड़ी देर बैठाते भी हैं कि आप पूजा में बैठो, 2 लाइन तो बोलो, फिर खेलने चले गए। तो यहाँ के बच्चों का हमने यही देखा है कि सब लोग एक्साइटेड रहते हैं। तो एक मंदिर भी एक है, बट छोटे बच्चों के लिए वो ज्यादा काम करता है कि इस बहाने जाना, सीखना और अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है उनको। छोटे बच्चों के लिए ही नहीं, मुझे लगता है कि इवन लेडीज के लिए भी बहुत बड़ा एक सोशल गैदरिंग प्लेस है, मतलब डिफरेंट एज ग्रुप के लिए। बट इट इज ग्रेट बिकॉज अगर एक घर में एक लेडी रोज मंदिर जाती है या कोई भी जाता है, तो एटलीस्ट वो घर मंदिर से जुड़ा रहता है। तो मतलब मंदिर का तो बहुत बड़ा वो है। और मतलब दूसरा एक बहुत बड़ा वो, जैसे नीरज भैया ने कहा कि बचपन में किया, फिर बीच में रह गया, फिर बाद में वापस चालू हो गया। तो इसमें ये भी है कि अगर हमारे पेरेंट्स ने निरंतर रखा, तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ से छूट गया थोड़े टाइम जैनिज्म का एक्टिव वो, तो भी हमारे को हमारे ही फैमिली मेंबर्स में हम देखते रहे कि वो लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि वी लीड बाय एग्जांपल एंड एटलीस्ट वी आर ऑलवेज एसोसिएटेड। बच्चे देखेंगे आज नहीं तो कल, वो डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल। तो अपना समय हो चुका है, लगभग 1 घंटा। नीरज भाई, जी अंकल, जी अंकल। संस्कार के ऊपर अभी अभी एक एग्जाम्पल दिखा मुझे। जैसी तुम्हारी पिक्चर आती है, वैसे एक मच्छर आता है और तुम्हारे ऊपर डंक मारने की कोशिश करता है मोबाइल के ऊपर। मेरे ऊपर अभी तक नहीं आया। तो उसके संस्कार ये हैं कि कहाँ मीठा खून मिलेगा और युवा कहाँ ज्यादा मिलेगा, तो वो तुम्हारे ऊपर ही जा रहा है। जय जिनेंद्र। जी जितेंद्र अंकल, नहीं, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा और ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपनी नई सीरीज शुरू हो चुकी है और इसमें अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे पहले तो मैं कमल अंकल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि कमल अंकल ने पहला सेशन लिया, और जैसा हमेशा रहा है कि अंकल से सुनने में बहुत मजा आता है। तो कमल अंकल, और सीखने को भी बहुत मिलता है कमल अंकल, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और वाई के अंकल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा से ज्ञानवर्धन करते हैं और हमेशा हमारा सबका उत्साह भी वर्धन करते हैं, ताकि हम इस काम को निरंतर जारी रखें। एंड थैंक यू स्वाति जी एज वेल फॉर सेटिंग अप जेन इन लॉन्ग बैक विच इज़ गोइंग फाइन नाउ। और रानू को धन्यवाद, जो मेरी पत्नी है, लेकिन धन्यवाद में देना पड़ेगा मुझे क्योंकि उसने आज का सेशन स्टार्ट किया। और भैया जी, आपको हम अगले 2 हफ्ते के बाद आपको सुनेंगे, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ उपस्थित होने के लिए। और जो सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं सब ऑडियंस को दूंगा, हालांकि काफ़ी लोग चले गए हैं, कि अगर ऑडियंस ना हो तो हमारा सेशन का कोई फायदा नहीं है। तो ऑडियंस का होना बहुत जरूरी है, ऑडियंस की सपोर्ट से ही हमें इस सेशन को हम आगे बढ़ा पाते हैं सीरीज को। तो थैंक यू टू एवरीवन। और वापस से जो ऑडियंस व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हुए हैं, अपना मोबाइल नंबर दे दें
और उन्हें हम व्हाट्सएप में ज्वाइन करा देंगे। ओके, तो हाँ, अभी चैट में और कोई मैसेज नहीं है, तो अपन अपना सेशन यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं। लगभग 1 घंटा 23 मिनट होने को आए हैं। तो आज के लिए अपन यही विराम लेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय